نعرہ اعلی حضرت لگاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو، سنی اس کا غم نہ کرنا، ہر دم آگے بڑھتے رہنا، جلنے والا ہمیشہ جلے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ السلام علیکم۔ جی کچھ گنجائش لگاؤ گے؟ جی حضرت میں رقی الدین بریلی شریف سے بات کر رہا تھا حضرت۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، وہ میں نے آپ کے پاس پرسوں فون کیا تھا، شاید پرسوں ہی آتا سو، وہ میں نے کہا تھا وہ ایک بندہ ہے وہ گمراہیت کے راستے پر اصل میں جانے لگا ہے، تو اس کی آپ کچھ تھوڑی بہت اصلاح کر دیں حضرت۔ اچھا اچھا، تو حضرت سمے ہے آپ کا، میں بات کرا دیتا حضرت۔ ٹھیک ہے صاحب، کراؤں حضرت؟ ہاں کرا۔ جی ایک منٹ لائن پہ رہیے گا۔ جی سامی بھائی بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی محمد سمیع منصوری جہان آباد سے بول رہا ہوں حضرت۔ محمد کلیم منصوری جہان آباد۔ جی اچھا اچھا، جی آپ کا مسلک؟ جی مسلک جی سر حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں میں۔ اچھا اچھا، حنفی میں بریلی یا دیوبندی؟ سر بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ بریلی مسلک سے؟ جی اچھا اچھا، جی کیا ہو کوئی بات ہو کیا؟ سر اصل میں ایسا ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہونا ایک طالب علم کی پہچان ہے، اچھا، اور ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دینا اہل علم کی نشانی ہے۔ تو دیکھیے میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ بھی ایک طالب علم ہیں، اور آپ اگر طالب علم ہیں تو جی آپ کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بریلی والا ہے کہ دیوبند والا ہے؟ سر بریلی والا ہے۔ اچھا، دیوبند کو تو میں سرے سے کافی کہتا ہوں، اشرف علی تھانوی میری نظر میں گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حفظ الایمان میں جس طرح کی عبارتیں لکھی ہیں، المحند علی المفند میں جو اس طرح کی عبارتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، کوئی دیوبندی سے مناظرہ کرنا چاہے تو میں اس کو تیار ہوں۔ وہاں بھی میری نظر میں کافر اور گستاخ ہیں، تقلید کے منکر ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی طرح ایک بس چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، تو آپ پڑھائی کرتے ہیں کیا؟ پڑھائی میں نے تھوڑی مختصر سی کی ہے، باقی تو طالب علم تو ایک عالم کی ڈگری بھی جس کو مل جاتی ہے وہ بھی زندگی بھر طالب علم ہی رہتا ہے۔ وہ خیر ایک الگ چیز ہے۔ جی، جی لیکن سوال ذہن میں کچھ پیدا ہوتے ہیں تو سوال پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سرے سے جھاڑ دیا جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے نا۔ بالکل بالکل، یہی طریقہ ہوتا ہے اہل علم کا۔ چلیے جو بھی آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہے اگر مجھے معلوم ہوگا، علم ہوگا تو جواب دوں گا، ورنہ لائن پہ لے لوں گا۔ جی جی اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی، مصنف ابن ابی شیبہ لکھی ہے نا امام بخاری۔ آپ کا جو سوال ہے، جو آپ کے دماغ میں جو کوئی سوال کوشچن چل رہا ہے، تو مسئلہ مسائل کے تعلق سے ہے یا عقائد کے تعلق سے ہے؟ مسئلے مسائل کے ہی تعلق سے ہے لگ بھگ۔ اچھا، تو دیکھیے مسئلے مسائل میں تو ہمارا دیوبندیوں سے بھی کوئی اختلاف؟ جی ہاں، دیوبندی بھی حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں، عقائد کی لڑائی ہے ہماری۔ ہم بریلویوں کی کچھ کتابیں ہیں جن کے بارے میں کچھ عبارتیں ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا اشکالات ہے مجھے، جیسے تذکرۃ الاولیاء ہے اور کشف المحذوب ہے۔ اچھا، کیا آپ نے پڑھی ہو؟ اچھا، تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحذوب، آپ کا کیا ڈاؤٹ ہے تھوڑا بتائیں، کیا عبارت ہے؟ جی تذکرۃ الاولیاء میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور آ کے آپ سے کہا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو اٹھایا اور پوچھا ٹھیک ہے میں مرید کر لوں گا، لیکن آپ تو یہ بتا کہ کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کلمہ ایسے پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت نے کہا کہ ایسے کر کے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اچھا، تو اس شخص نے اسی طرح سے پڑھا۔ اچھا، کے بعد حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے جانچ رہا تھا
तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तू पीर की बात किस हद तक मानता है। हालांकि कलमा ये नहीं है, कलमा तो वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं तुझे मुरीद करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा इस इबारत पे थोड़ा सा डाउट है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब कोई महबूब की किताब है वो किन की लिखी हुई है? तज़किरतुल औलिया, ये वाला जो हवाला है वो कौन सी किताब में है? तज़किरतुल औलिया में या कश्फुल मौजूद? तज़किरतुल औलिया में वो ये हश्त बहिश्त में है सर। हश्त बहिश्त जो किताब है जी जी, इसके मुसन्निफ का नाम ज़हन से उतर रहा है, मैं देख के बता दूंगा, किताब रखी है मेरे पास। और तज़किरतुल औलिया में एक इबारत है कि हज़रत बाजीद जी, जब उसमें वो खुद ही कह रहे हैं, होगी कोई ऐसी बात जो उनके सामने गुजरी हो जी, उन्होंने किसी वजह से उसका इम्तिहान लिया हो। बहरहाल हमारा इसमें जी मतलब जो हमारे बुजुर्गों का अकीदा है, जो हमारे बुजुर्गों का नजरिया है वही है। अब ये किसने लिखी है, कैसे लिखी है, क्यों लिखी है, हमें जी नहीं मालूम, ठीक है जी। अब हमारा कोई मोतबर आलिम है या गैर मोतबर आलिम है, अल्लाह के जाने को क्या है। ठीक। दूसरी बात, जब उसमें ये उन्होंने खुद ही लिख दिया, जिसने भी किताब लिखी है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फिर बाद में कहा कि नहीं, कलमा वही है, क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आपने ऐसे पढ़ के बताया कि मैं अब तुझे मुरीद करता हूँ, तो उन्होंने फिर उसको मुरीद कर लिया। और इसकी वकालत अशरफ थानवी ने भी अपनी किताब में की है। अच्छा जी, कि उन्होंने उसका इम्तिहान लिया था। जी हाँ, बहरहाल अब वो लिखने वाले कौन है, क्या है मामला, क्या मामला है, इम्तिहान तो लेने के हमारे ये थी ना, एक मिनट, चाहिए था जी। तो फिर हुक्म लगा दीजिए, आप लगा दीजिए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पर हुक्म। मैं उन पर हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, और न मेरा ये अकीदा है कि उन्होंने ऐसा पढ़वाया होगा। मैं तो उनके बात की गड़बड़ किताबों में करी है, हो सकता है जैसे इंजील में गड़बड़ कर दी गई, हो सकता है बाद में किसी ने गड़बड़ कर दी हो। सुनिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए बात तो सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी जी। मैंने आपको क्या बताया कि वो किताब किसकी है, किन्होंने लिखी है, क्या मामला है, क्या मैटर है, वो हमारा कोई मोतबर आलिम है या नहीं है, मैंने बताया ना आपको। और जिस किताब से ये हवाला लिया गया है वो किस किताब से लिया है, उस किताब में किस किताब से नकल किया गया है, जिस किताब से नकल किया गया है वो मोतबर किताब थी या नहीं थी। बहुत सारी किताबों की बातें नकल की जाती है ना जी, तो नकल तो फतवा नहीं लगता ना जी। उसका रेफरेंस उस किताब को इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायद फतावा रज़विया में मोतबर किताबों में शुमार करा है। इसका मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा, मैं इनके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा रफीउद्दीन भाई के। अच्छा हाँ, तो वैसे तो बहुत सारी देवबंदियों की किताबों का ये जो है जी उन्होंने उसमें हवाला दिया है। तो क्या आप ये कह देंगे कि आला हजरत का भी यही नजरिया था, यही अकीदा था? नहीं, बिल्कुल नहीं कह दूंगा। हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि उस बात को क्यों लाया गया इस किताब में, क्या समझाया गया, क्या बताया गया है ना जी। ये तो उलमा बताएंगे बेहतर तरीके से। इसीलिए तो देखिए सर, मगर हम ये कह रहे हैं कि जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वो बात खुद ही लिख रहे हैं, कहने वाले, लिखने वाले, कि मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसको थानवी जी भी इसकी वकालत कर रहे हैं। थानवी जी की, अब अगर कोई थानवी के अल मुहन्नद अल मुफन्नद में एक रिसाला थानवी जी ने नकल करा है, उसमें भी उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह शेख अली रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ाया हुआ है। वो नहीं है, वो रिसाला अल इमदाद में है यार। हाँ, अल इमदाद में है वो। हाँ, वो उसमें नहीं है जी। हाँ, वो रिसाला अल इमदाद की बात है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं थानवी का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ कि थानवी ना रिसाला अल इमदाद के ताल्लुक से, मैं ये बात कह रहा हूँ जो हुजूर ख्वाजा नवाज की ये बात आपने बताई है ना जी, इसी की वकालत थानवी ने की है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थानवी का जो मुरीद था अजीजुल हसन, उसने ऐसे कलमा पढ़ा और उसने जो है फिर वहां जाके उसको ऐसे ऐसे बताया और थानवी ने जो है कहा कि इसमें इस वाकई में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बेवनी ताला मुत्तबे सुन्नत है। मैं ये नहीं बता रहा जी।
हाँ, ये बात तो हम तब पकड़ते हैं जब कोई दो का बंदर जो है इस बात पर बहस करता है, और फिर हम पहले उस थानवी का हवाला देते हैं, थानवी की वकालत को उसके सामने पेश करते हैं, फिर उसके बाद में ये हवाला पेश करते हैं। जी थानवी ने कहा ही नहीं कि नहीं कलमा वही है। जी थानवी ने ये कहा कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो दीनी ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी वो सुन्नत का पाबंद है। जी उसने ये कहा ही नहीं कि कलमा वही है। जी और यहाँ तो हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर भी कोई तंज नहीं आता। अगर किसी को कोई तंज लगता है तो लगा दे हुक्म। जी हम तो सीधा सीधा कहते हैं ना, अगर हुजूर ख्वाजा नवाज पर कोई फतवा नाराजने की हिम्मत रखता है तो लगा दे। जी हम तो सीधा सीधा कहते हैं जी लगा हुक्म। जी जी, अब बताइए आगे की क्या बात है, आगे आपने क्या देखा? आप भी चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, ना उन्होंने ये किताब लिखी तो है, ये उनके मुरीदों ने लिखी है। उनके मुरीदों से मेरा जो है उस पर ऑब्जेक्शन है। मेरा यकीन नहीं है कि आपने इस तरह से इम्तिहान लिया होगा, क्योंकि हमने अबू आपसे बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सहाबी ने इस तरह से इम्तिहान नहीं लिया, और अगर लिया भी होता तो पहले तौबा बात है, ठीक है तूने कलमा तो जो पढ़ा है ये कलमा नहीं है, इससे तौबा कर ले, कलमा से है इस तरह से तो सही था, उसका तौबा कराए बगैर। मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी जी कि वो किसने लिखी है, क्यों लिखी है, किस वजह से लिखी है, क्या मामला था, है ना? जी ये हमें नहीं मालूम। और जी कौन सी किताब से हवाला लिया गया है, किताब मोतबर है कि गैर मोतबर है, ठीक है, आलिम मोतबर है कि गैर मोतबर है, मैंने ये सारी चीजें आपके सामने बोल दी। जी चलिए, वो आपका मुसन्निफ और किस किताब से हवाला लिया गया वो सारा मैं इनको भेज दूंगा। भेजने ना भेजने को नहीं कह रहा हूँ, जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का दिल चाहे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर हुक्म लगाने का तो वो लगा सकता है, लगा दे। जी उसका मामला आखिरत में होगा। जी हम तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली मानते हैं। जी हाँ जी जी, आगे की कोई बात? जी आगे तज़किरतुल औलिया एक किताब है, उसमें एक इबारत लिखी हुई है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी, उनका पूरा एक चैप्टर बांधा है कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मेराज, जिस्मानी हालत में आपको मेराज हुई, आप अल्लाह के अर्श पे तशरीफ ले गए और अर्श से जाके पूछा अल्लाह कहाँ है, तो अर्श ने कहा मुझे नहीं पता। ये इबारत तज़किरतुल औलिया में लिखी हुई है। अच्छा, आज ये वाली चीज में जो है आपसे पहली मर्तबा ही सुन रहा हूँ, ठीक है? जी तो जी इसमें जो किताब है जी तज़किरतुल औलिया, ये किन की लिखी हुई है? ये गालिबन मुसन्निफ जहन से उतर गए हैं, मुसन्निफ याद नहीं रहते, फखरुद्दीन शायद कोई ऐसी करके कोई नाम है, जहन से उतर गए। फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी शायद हो सकता है, या दूसरे जहन से उतर रहा है, मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है ये हो। बहरहाल मैं भेज दूंगा। जी देखिए, हमारा नजरिया, हमारा अकीदा वही है साफ सुथरा जो हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वहदानियत और रिसालत को बड़े अच्छे अंदाज में जो है पेश किया है। जी जी, हमारे इस दौर के मोतबर आलिम हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने वहदानियत और रिसालत को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। आप अब इधर उधर कांस जो है तैरेंगे तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो अंजाम कि ताहिरुल कादरी भी बहुत बड़ा सुन्नी था, बहुत अच्छा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था और बड़ा जबरदस्त इल्म वाला था, जी मगर भटक गया। जी जानते हैं ना उसको? जी मेरा असल में मकसद ये है कि जब तज़किरतुल औलिया बरेलवी मकतब फिक्र से शाया हो रही है, छप रही है, कौन सी? ये जो किताब है कश्फुल महजूब है, अच्छा तज़किरतुल औलिया है, अच्छा, तो ये जो छप रही है बरेलवी मकतब फिक्र से ही छप रही है। अच्छा, हाँ, तो इस पे
ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अच्छा, तो हजरत मैं यहाँ एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जमात के जितने बड़े बड़े आलिम हैं, आपके जी। जितने भी एतराज हैं आज आप सुना दीजिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जमात के बहुत बड़े बड़े आलिम हैं वो जी। आपके एतराज को सुने और आपके एतराज का जवाब भी दें। आज आप अपने एतराज रखिए, और मैं तो नहीं जानता कि आप ये किस वजह से कह रहे हैं या किस वजह से जो है आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि जरूर आप अपने तमाम एतराज रखें, उनका खुलासा क्या है। और दूसरी बात यह कि हमारा जो झगड़ा है देवबंदियों से, वो माज़अल्लाह हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उंगली उठाते हैं, मगर हम कहते हैं कि हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उंगली उठाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जी। बहरहाल तो इनके मुसन्निफ कौन थे, क्या नहीं थे, बहरहाल आप वो सारी चीजें बयान करें कि हमारे उलमा का इन बातों पर क्या मौक़िफ़ है। जी। मैं ये जानना चाहूंगा, और तमामी अपने उलमा को मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ, हमारे जी। मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती मुतीर रहमान साहब क़िबला, जी। और जितने भी मुनाज़िर हैं या जितने भी बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, जी। जैसे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला इस दौर में, जी। या मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब, जी। या दीगर और बहुत सारे मुफ्तियान इकराम हैं, जी। मैं तमाम की जिम्मेदारी समझता हूँ कि जिन जिनको इन बातों पर मालूमात है और नहीं है तो मालूमात करके जवाब दें। जी। ठीक है, जी। आप अपनी बात रखिए। कश्फुल महजूब एक किताब है, दाता उस्मान अली गंज हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई, अल-मुतवफ़ा 461 हिजरी में कश्फुल महजूब लिखी गई तसव्वुफ से सबसे पहली किताब है। तो उसमें एक इबारत लिखी हुई है कि हजरत बाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने के लिए गए तो वहां पर जाकर जब हज किया, काबे के सामने खड़े होकर अर्ज किया कि मेरा हज जो है वो मकबूल नहीं हुआ। ऐसे पत्थर तो मैंने बहुत देखे हैं, मेरा हज तो तब मकबूल होगा जब मैं अल्लाह को देखूंगा। दूसरा के फिर हज करने के लिए गए तो काबे को भी देखा, काबे के रब को भी देखा, फिर फरमाया कि मेरा हज अब भी मकबूल नहीं हुआ, ये काबा मुझे क्यों नजर आ रहा है। तीसरा के जब फिर हज करने के लिए गए तो सिर्फ काबे के रब को देखा तो फरमाया कि अब मेरा हज मकबूल हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा आपको भाईजान। जी। आपने विलायत की तारीफ तो सुनी होगी, मालूम भी होगा कि विलायत की क्या तारीफ है, विलायत है ना। जी। अच्छा, नबी का मौजज़ा और वली की विलायत ये है कि जो आदमी के जहन में ना आए, आदमी की सोच और गुमान से भी दूर हो, जी। है ना। जी। नबी का मौजज़ा भी इंसान के समझ में नहीं आ सकता, इसी तरह वली की विलायत भी इंसान के समझ में नहीं आ सकती। लेकिन एक बात हज़रत ये भी जहन में सुने तो जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मतलब इसकी वजाहत तो उलमा करेंगे, मैं इसकी जी। वजाहत नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ। अच्छा, जो जी। मजलूब लोग होते हैं ना, मजलूब, जी। इनकी कैफियत मतलब बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है कि उनको होश नहीं रहता अल्लाह की याद में। तो उन पे कोई किसी तरह उनकी कोई बात मोतबर भी तो नहीं मानी जाएगी ना। तो सुन तो लीजिए, इसका फैसला तो उलमा करेंगे ना हजरत। जी। मतलब उलमा ने हमको क्या बताया, मैं वो चीज कहना चाह रहा हूँ कि वो जो मजलूब लोग होते हैं, वो जो करते हैं ना, वो दुनिया वालों को उल्टा नजर आता है, उल्टा लगता है। जी। एक होती है कमाली हालत, एक होती है जलाली हालत, जी। है ना। जी। मानते हैं ना आप इसको, कमाली और जलाली। हाँ, वो मैंने पढ़ा है, हालत शुक्र और हालत सहब के बारे में आप शायद बता रहे हैं। तो एक ऐसी हालत होती है कि जिसमें जो जलाल भरी होती है, जी। और एक ऐसी होती है कमाल भरी होती है। जी। हाँ, तो इन हालतों में भी जो अल्लाह का वली कुछ कह देता है तो वो भी अल्लाह ताला उसको मकबूल कर लेता, कबूल कर लेता है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता? सुन तो लीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी। हाँ, और मजदूब पर कोई फतवा नहीं रखता। ऐसे बहुत सारे देवबंदियों की किताबों से भी मजदूबों के वाकयात भरे पड़े हैं। जी। समझे? जी। हाँ। अच्छा, उलमा इन तमाम चीजों पर नजर करके हमारे इन तमाम एतराजों का जवाब दें।
बाकी देव के बंदर जो इस पर कान खड़े करेंगे वो करेंगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देवबंदियों के लिए तो मैं कहना काफी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो देवबंदियों के 4 अकाबिर को मुसलमान साबित ही नहीं कर सकते, वो खुल्लम खुल्ला काफिर हैं। और ये जो नमाज पढ़ते हैं ना 5 टाइम, ये 5 टाइम नमाज में जाके शिरक करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इनकी नमाज ही नहीं होती किसी भी सूरत से, किसी भी तरह से। ये टकरे मारते हैं खाली जमीन में जाके, मत से काले करते हैं, कबाब बना लेते हैं, समझे जनाब? एक इबारत और है इसी किताब में कश्मीर। हाँ बताइए जी। भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कयामत वाले दिन रोज़े महशर तुम्हारे झंडे के, आपके झंडे के नीचे भी, आपके झंडे के नीचे कौन कौन होगा? तो भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मेरे झंडे के नीचे कई अंबिया भी होंगे। अच्छा जी, इस पर भी एतराज है आपका? मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं एतराज किसी पे नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं फतवा लगा रहा हूँ हजरत। मैंने साफ आपको पहले कह दिया कि मैं, मेरे जो इश्कलात है सिर्फ वो पूछ रहा हूँ, मैं फतवा किसी पे नहीं लगा रहा हूँ। हाँ ठीक है, और आगे की बात करिए। अगर मैंने किसी पे कुफ्र का फतवा लगाया या झूठ का फतवा लगाया तो वो फतवा लौटेगा। मैं फतवा किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी इस्लाह चाहता हूँ। इन इबारत को पढ़ी है मैंने, मैं फतवा किसी पे नहीं लगा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने करेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि इन किताबों में बाद में गड़बड़ी कर दी हो, जैसे इंजील में गड़बड़ी कर दी थी, है ना? ठीक है जी, आपने ये बात जो है कही, और मुझे अच्छा लगा कि आपने इन बातों को खेड़ा। इनकी वजाहत क्या है, उलमा इकराम जो है इसका क्या जवाब देंगे, मैं उनके जवाब का मुंतजिर हूँ जी। मैं इंतजार करूंगा उनके जवाब का कि क्या जवाब आता है। इसको सुनकर खामोश ना रहें, अपनी जिम्मेदारी को जी जो है जरूर निभाएं, जी ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। जी। एक बात यह है कि हम अगर किसी बड़े उलमा के पास कॉल करते हैं तो उनके पास वक्त नहीं होता समझाने का, जी। मगर मैं कहता हूँ कि अवाम अहले सुन्नत में से कोई अगर कॉल करे तो उन्हें समझाओ, बताओ, वक्त दो। जी समझे हजरत? जी जी। बहुत सारे उलमा फोन पर बताते ही नहीं, बातें नहीं करते, मगर बहुत सारे उलमा बताते हैं, बड़ा टाइम देते हैं। जी हाँ बहरहाल ये तो किताबों के हवाले से हो गया, लेकिन थोड़ा सा सवाल ये था कि वो जो मैंने बताया था ना, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं, अच्छा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा लिखी है, अच्छा, तो उन्होंने पूरा मतलब एक चैप्टर बांधा है रद्दे इमाम अबी हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रद्द किया है। अच्छा अकाइद में कि मसाइल में? मसाइल में। तो देखिए मसाइल में तो इख्तिलाफ हो सकता है ना, और चारों उलमा का इख्तिलाफ है मसाइल में, तो हाँ मसाइल चारों में उलमा के मसाइल अलग अलग हैं। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है यार। नहीं तो इख्तिलाफ हमारे यहाँ मसाइल कुछ और हैं, उन दूसरे उलमा दूसरे इमामों के यहाँ मसाइल कुछ और हैं। रद्द तो हम ये भी तो कहते हैं कि इमाम शाफी का मसलक अलग, उनका मसलक अलग है, लेकिन वो रद्द तो नहीं करते हैं ना कि इमाम आदम अबी हनीफा ने रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर किसी हदीस के ये मसाइल निकाल दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो मसाइल हैं बड़े पुख्ता और सख्त हैं। हाँ ये भी मैं भी मानता हूँ। ऐसे शख्स से भी हदीस नहीं ली जो रावी गलत साबित होता हो। जी हाँ रद्द तो नहीं करते हैं ना। चलिए बहरहाल आगे की बात कहें, या अगर ये बात रह गई हो तो पूरी करें, दोबारा से बता दें। तो आप लगभग इमाम अबी शैबा गालिबन 150 जने 200 हदीस लेके आए हैं उस चैप्टर में, और उन्होंने ऊपर हदीस लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है कि और ये हदीस ये बताती है, और इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का की राय ये है, ये हदीस ये बताती है, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है। मतलब हदीस कुछ बता रही है और हदीस के बरक्स इमाम आदम अबू हनीफा का कॉल लेकर आए, वो पूरी तरीके से हदीसों से रद्द कराए। अच्छा, उस चैप्टर को पढ़ के ये लग रहा है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नाउजुबिल्लाह हदीसों के खिलाफ काम करते थे, कॉल फतवे देते थे। अच्छा, और ये इमाम बुखारी इसका भी जवाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत के जो मुफ्तियान इकराम है वो देंगे। मैं कहता हूँ कि हमारे सूफी कलीम हनफी रज़वी साहब, मुफ्ती सलमान नज़री साहब किबला, और अगर हो सके तो मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, अगर उनकी तबीयत ठीक है, पहले तबीयत अलील थी, तबीयत खराब थी, अगर तबीयत ठीक हो तो वो भी दें।
اور جو بھی ناظر اہل سنت ہے ان کا مناظرہ یا ہوا جو تو بھی مفتیان اکرام ہے، ٹھیک ہے، میں ان تمام کی ذمہ داری سمجھتا ہوں جن جن حضرات کے پاس یہ آڈیو پہنچے اور یا جی جن بھائی کے پاس پہنچے وہ اگر ان کے رابطے مفتیان اکرام سے ہوں تو وہ اپنے ہر مفتی کے پاس اس آڈیو کو بھیجیں، جی اپنے ہر مفتی کے پاس اس آڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ ہماری اصلاح کریں. جی ٹھیک ہے، جی جی الحمدللہ. وہ جواب دیں کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، ورنہ جی عوام کے جو ہے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، عوام کے عقائد میں انتشار ہونے کا خطرہ ہے، جی عوام بالکل میں بالکل. آپس میں انتشار پیدا ہو جائے گا. اچھا حضرت، میں خود الحمدللہ بریلوی امام اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والا ہوں. میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں لیکن اس پڑھنے کے بعد میں نے اپنی کوئی رائے قائم نہیں کی حضرت. دیکھیے میں آج بھی اسی مسلک پہ ہوں. اگر میں اپنی ایک منٹ. سے اپنی لوجک سے کوئی رائے قائم کر لیتا تو میں کب کا بھٹک چکا ہوتا. لیکن میں نے ہمیشہ کوشش یہ کری کہ میں اپنی اصلاح کر لوں. جب ان کی طرف دلائل ہیں تو الحمدللہ ہم بغیر دلائل کے نہیں ہیں. ہمارے پاس بھی علماء کے پاس دلائل ہیں. اگر کسی ایک علماء نے مجھے جواب نہیں دیا ہے اب آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ علماء ہمارے لیے حجت ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. جی جو ہمارے لیے حجت ہے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. ہمارے جی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حجت ہے. جی اس دور میں ہمارے اعلیٰ حضرت اور ان کی اولاد حجت ہے. جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضور تابع شریعت تک کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوئی یا کوئی بھی ہمارے بریلی شریف سے کوئی ایسا فتویٰ نہیں آیا جو دنیا دیوبندیت یا بد مذہبیت، مطلب کسی بھی دنیا کے کسی عالم نے فتویٰ رد کیا ہو. جی سمجھے، کوئی بھی ایسا فتویٰ نہیں ہے. مگر دوسری جگہوں کے جو فتوے ہیں ان میں رد و بدل ہوتا ہے. جی بریلی شریف کا کوئی فتویٰ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی دوسرے عالم نے جو ہے رد کیا ہو. جی ہاں، بہرحال اور کوئی دوسری بات کہیے اور کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کا؟ آج یہی ساری باتیں کیجیے کیونکہ جی جی ہمارے جو عالم ہیں جی بخوبی اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی باتوں کا جواب دیں اور ہم تمام کو جو ہے سمجھائیں. جی. اچھا دوسرا اشکال یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیے، جی آپ نے اس سے مجھے سلام کیا تھا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا تھا؟ آپ نے نہیں دیا تھا شاید. نہیں دیا تھا. جی شاید. چلیے اگر آپ سنی صحیح عقیدہ ہے میں آپ کے سلام کا جواب دیتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے بھی دھیان نہیں رہا ہے باتیں کرتے کرتے کیونکہ میں کسی بد عقیدے کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا ہوں. جی چلیے کوئی نہیں. ہاں وہ تو بات کی بات. دوسرا اشکال میرا یہ ہے، ہم الحمدللہ سنی احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے قائل ہیں الحمدللہ. آپ کا قول ہمارے لیے حجت ہے. جی بالکل. اور اگر کوئی امام کے قول کے خلاف بھی کوئی حدیث اگر ہمیں ملتی ہے صحیح تب بھی ہم امام کا قول لیں گے، کیونکہ جس حساب سے امام نے سمجھا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے نا. جی، اور زمانہ ان کا بہت حضور کے بہت قریب کا ہے نا. جی جی بالکل، انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے. جی جی ہاں غالباً 80 صحابہ کی زیارت کی ہے. 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. جی. تو آگے کی بات کہیں جلدی حضرت، میرے پاس جو ہے نا بیٹری 2 پوائنٹ بچی ہے. اچھا میں جلدی سے کر رہا ہوں. ہم اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، ان کا کوئی بھی قول ہم نہیں چھوڑ سکتے. لیکن بہت سے مسئلے ایسے ہیں جس میں ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو چھوڑ دیا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اٹھا لیا ہے آج کے وقت میں. اچھا جیسے شاید کیا نام وہ جو ہے قربانی کا جو جانور ہے، اچھا اس کا جو وہ گودا جاتا تھا کان کے پاس میں چھری لگا کے ہلکا سا خون نکالا جاتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا اور ہاں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ یہ نہیں کیا جائے گا. اور عقیقے کو لے کر عقیقہ جو کیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاید قول یہ ہے کہ عقیقہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ عقیقہ تو حنفی لوگ کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں، لیکن قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا شاید یہی ہے. اور وہ عورت جس کا شوہر گم جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے گی.
अच्छा जिसका शौहर हो जाए। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि वो 10 साल तक, तो हम 10 साल वाला लेते हैं। अच्छा तो जब हम हमारे लिए इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये हुज्जत है, तो हमने फिर ये वाले मसाइल इमाम आदम अबू हनीफा के क्यों छोड़ दिए और इमाम शाफी के क्यों ले लिए? और अगर ले लिए तो फिर कई कौल भी हम ले सकते हैं, मसलन रफ़उल यदैन करने के हदीसों में भी हम ले सकते हैं इमाम शाफी का कौल क्या, जबकि इमाम आजम के नजदीक जो है वो मनसूख हो चुका है रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। आखिरी वक्त तक जो है हुजूर ने नहीं किया है और जी। करने की कोई वजह रही थी, ठीक है, जी। हुजूर ने मना फरमाया है इस बात को। बहरहाल जी इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, बाकी की आगे की बात कोई कहें अपने। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि मसले मसाइल पर मैं बात नहीं करता हूँ, मगर आपको जो डाउट है वो आप कहें, क्योंकि मैं उलमा तक इसको मैं पहुंचाना चाहता हूँ। ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक लास्ट में एक सवाल थोड़ा सा है वो पूछना चाहता हूँ कि अल मफूजात जो किताब है इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, अच्छा, तो उसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 90 है, शायद हो सकता है ध्यान से उतर गया हो। उसमें एक इबारत लिखी हुई है कि सैयदी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दजला के किनारे तशरीफ ले गए और या अल्लाह कहा और दजला पर ऐसे चलने लगे जैसे जमीन पे चलते हैं। पीछे से आपका एक मुरीद आया, उसको भी दरिया पार करना था लेकिन कोई नाव वहां पर मौजूद नहीं थी। उसने आवाज लगाई, हजरत मैं कैसे करके आऊं? तो आपने फरमाया या जुनैद कहते हुए चला। वो शख्स या जुनैद कहता हुआ दरिया फुरात पर ऐसे चलने लगा जैसे जमीन पर चलता है। बीच दरिया में जब वो शख्स पहुंचा तो उसके दिल में शैतान लईन ने बसवसा डाला कि हजरत खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और मुझसे या जुनैद कहलवा रहे हैं, क्यों ना मैं भी या अल्लाह कहूं। उसने या अल्लाह कहा और गोता खा गया और फिर आवाज लगाई, हजरत में चला। तो हजरत ने आवाज लगाई कि तू वही कह जो पहले कह रहा था, यानी या जुनैद। उसने या जुनैद कहा और दरिया पार हो गया। अब इसमें हाँ, इसमें डाउट नहीं, मतलब एक जहन में सवाल पैदा हो रहा है कि या अल्लाह कहने से शख्स डूब रहा है और या जुनैद कहने से दरिया पार हो रहा है। देखिए शैतान तो चाहता ही है कि मैं मोमिनों को बहकाऊं, है ना। जी जी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उसका वसीला थे, जरिया थे जी। उन्होंने एक जरिया बताया कि जरिया पकड़, वसीला पकड़, पहले जुनैद तक पहुंच। जी। डायरेक्ट को खुदा मिला है क्या? जी। खुदा का पता हमें रसूलुल्लाह ने बताया है जी। क्या हमें डायरेक्ट खुदा मिला? क्या डायरेक्ट कोई पहुंचा? जो रसूलुल्लाह से ना मिला क्या वो खुदा तक पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं पहुंचा। बीच में रास्ता चाहिए ना, बीच में कोई जरिया चाहिए ना। जी। तो हमारा जरिया रसूलुल्लाह है सबसे पहले, फिर उनके गुलाम है। जी। आज हम जो कोई आलिम जो बनते हैं, ये लोग ये खुद बहुत आलिम थोड़ी बनते हैं, ये किसी जरिए से बनते हैं, किसी न किसी उस्ताद से बनते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया कि पहले जुनैद तक पहुंच जा, तुम पहुंच पहले जुनैद तक कर, उसके बाद आगे पहुंच। जी। तो ये मामला क्या एक यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप पहले जीने पे पैर रख के क्या आखिरी जीने पे पैर रख सकते हैं? छत पे चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते, टांगे चढ़ जाएंगे अगर कोशिश भी कर ली तो। जी, है ना, पूरा बीच में से इंसान फट जाएगा। नहीं तो इसी बात का मतलब जो हजरत है वसीले का तौर लग रहा है, वसीले इरशाद फरमाया ना, मैं इसको वली की करामत कहूंगा। जी। बाकी उलमा इसका जो है जवाब देंगे। जी, लेकिन वसीले का जो कॉन्सेप्ट है, वसीला जो है वो किसी और तरीके से वसीला जो है वो किसी और तरीके से भी समझाया जा सकता है। इसमें तो खुदा की वहदानियत पे जो है थोड़ा सा वो लग रहा है। सुनिए वहाँ शैतान ने वसवसा डाला है ना। जी, वहाँ अल्लाह के वली से दूर करने के लिए शैतान ने वसवसा डाला है। अरे उनकी पहुंच है उतनी, उनकी पावर है उतनी, ये हमारी पावर कहाँ होती है? हम मजार पे क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारी जबान तो काबिल नहीं है ना। मगर जो अल्लाह का महबूब बंदा है, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, हम उसकी बारगाह में जाएं ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के वसीले से जो है हमारी दुआ को कबूल करे। अच्छा एक बात बताइए, आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या जज तक आप अकेले पहुंच जाते हैं या किसी वकील के जरिए से? नहीं, वकील के जरिए पहुंचते हैं। तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मैं कानून इसमें के बता दूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहूंगा आपसे, बस उलमा से मैं इन सब का जो है जब आप
लेना चाहूंगा। ये भी बहुत लंबी हो गई, बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा है बिल्कुल। सही मुस्लिम में हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2245 नंबर हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्र के ऊपर इमारत बनाने से। तो अब जो ये इमारतें कब्र के ऊपर बनी हुई हैं, तो ये तो उसका मतलब ये है कि घर बना, उसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि घर बनाने से, जी अपना मकान बनाने से मना करते हैं हुजूर। कब्र के ऊपर इमारत बनाने से, हाँ हाँ, अपना हो सकता है कि हुजूर का मकसद ये हो कि हुजूर ने फरमाया हो कि जहाँ पर कब्र है तो वहाँ आप घर मकान नहीं बना सकते। अगर पहले सुनिए, अलल फौक का वहाँ पर अरबी में जो मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए जी, आप हर चीज से उल्टा ना समझे। जी अगर ऐसा था तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये इमारत क्यों बनी हुई है इतनी बड़ी? वो इमारत हुजूर ख्वाजा नवाज, एक मिनट, हुजूर को साधन की बनी हुई है। ज्यादा मत बोलिए, बात को सुनिए, ज्यादा मत बोलिए जी। अगर आप वाकई कसम से आप कह रहे हैं कि आप अहले सुन्नत में से सुन्नी हनफी बरेलवी हैं तो बात को सुनिए, ज्यादा ना बोलें जी। जितने भी अल्लाह के वली हैं जी और नबी हैं जी, उनके ऊपर जो कब्र के ऊपर जो गुम्बद बने हुए हैं जी, यहाँ तक कि मैं वहाबियों को बता दूं कि भोपाल ये जो है सिद्दीक हसन भोपाली, इसका भी बना हुआ है जी, समझे? ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का बना हुआ है। इन सबको छोड़िए, मैं रसूल पाक का बता रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर वो गुम्बद क्यों बना हुआ है अगर ये ठीक नहीं है। ये 750 बात 750 एक मिनट मैं इसकी भी तुमको जो है पहचान करा दूं। ये कब बना, क्यों बना कि दो चूहे, दो काफिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें मुबारक को निकालने के लिए आ रहे थे और खोदते 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 मेरे आका के करीब तक पहुंच गए। मेरे आका ने बिशारत दी जी कि मुझे दो चूहे परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जी, उनको पकड़ो और सजा दो, यह जो भी कहा, ठीक है। तो वहां के जो उस वक्त जो अमीर थे उन्होंने पूरे मदीने के लोगों की दावत की, जी, मालूम है ना? जी, मालूम है कि नहीं है? देवबंदियों को भी मालूम है इस बात का। तो मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद नबी में कुछ लोग आए थे, वो यहूदी या ईसाई थे, वो मस्जिद नबी में उन्होंने अपना कयाम किया, किस बात में थे? मुसलमानी के अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्श के बादशाह को, जो उस वक्त का सऊदी का बादशाह था, उसको ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे फरमाया कि भाई ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मस्जिद नबी में कुछ लोग बैठे हुए हैं। चेहरा भी दिखाया, हुजूर के रोजे के चारों तरफ खंदक खुदबा के शीशा पिघलवा के भरा था। ये मैंने सिर्फ जो है वो सुना है, गुम्बद का कोई मैंने सुना नहीं। रोजे के वही बात। अरे एक मिनट जी, वहां पर शीशा पिघला के भी वो नीचे से जो है लाया गया, ठीक है जी, और उसके ऊपर इमारत भी जो बनी हुई है वो जबी की है। मैंने जो पढ़ा है, शायद मैं किताब देख लूंगा कौन सी में पढ़ा, वो 750 साल के बाद, हुजूर के विसाल के बाद वो बनाई गई है और उस वक्त के आलिमों ने बहरहाल जी एतराज भी किया। आप जो समझ रहे हैं उसको, जो इमारत के लिए मना किया है वो मकान बनाने के लिए भी तो मना किया हो सकता है ना? हो सकता है, इसीलिए तो मैंने ये सवाल रखा है ना, जहन में पैदा हुआ तो बस मैंने सवाल रखा। बहुत सारे लोग आजकल भी कब्रों के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं और कब्र के ऊपर पैर रखना मना है जी, लगाना मना है जी, हुजूर ने मना फरमाया है और हुजूर जलाल में आके मना फरमा रहे हैं कि तुम कब्र वाले को तकलीफ दे रहे हो। जी, अरे भाई कब्र पे टेप जब तो लग सकती है जब कब्र जो है वो जमीन से ऊपर होगी। जी, आज के सऊदी हरामी कहते हैं कि कब्र को जो है जमीन से मिला दो। जी, है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की कब्रों को तोड़ने का हुक्म दिया था। आज के वहाबी देवबंदी हरामी शैतान कहते हैं माज़अल्लाह कि जितने भी अल्लाह के वली के मज़ार है इनको